Okay, so hope the situation will get better and you people will come to school quickly, not late. Okay, and I that it is. Let's start revision for the structure of atom. Okay, Today is your last online class. online class, yeah. Last online. That's why I was asking how many of you are going to attend. Ma'am, last online class today. Yes, that's why I was asking that how many of you are going Yes, to ma'am. attend offline classes, because if offline is there, then no online classes will be there. Then how many of you will be losing it? I don't know. Ma'am, Monday after offline classes. Then how many of you will come? That depends, na. Okay, let's see. Leave that. Offline or online, we will first finish this particular portion revision. Okay, revision start करने से पहले मैंने आपको कल क्या बोला था? I will start with the what क्वेश्चनिंग ऑफ द आयंस पार्ट. ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा आयंस आपसे पूछ लेती हूँ, एटम्स पूछ लेती हूँ, एटॉमिक नंबर. देन आई विल स्टार्ट विद द अदर पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मुझे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स आपसे सुनने हैं. खुशील, यस खुशील, खुशील, नो रिप्लाई, लेफ्ट द क्लास. कृषिका, Yes, ma'am. can you read the first 20 elements? Yes, ma'am. First 20 elements. 20 May I say? Yes, others can, if you know the symbol, you can write to the chat also. Yes, Krishika. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I can't understand what you say. 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के नाम बोलिए. Yes, ma'am. Helium. हाइड्रोजन से नहीं शुरू होता, हीलियम से शुरू होता है. No, hydrogen. Helium. Potassium. Uranium. No, but it's totally. Ma'am, May I calcium. say? Yes, okay. Wait, Krishika. Then who raised the hand? Bhumi and Harit. Okay, Harit, tell. Yes, ma'am. Ma'am, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, calcium. Potassium, then calcium. Yes, ma'am. Sorry. Okay, correct. Good. Ma'am, Good. मैम एक डाउट है. बोलो बेटा. मैम जैसे कोई ऑन ऑफलाइन नहीं दे पाएगा तो उसको ऑनलाइन ही होगा कि ऑफलाइन होगा? That school will tell. बाहर जा रहा हूँ. That school will tell na, that ma'am, you ask ma'am, then only you will get to know how I will can tell about that. मैम आपको कुछ आइडिया है कि जैसे डे बोर्डिंग वाले हो कि मतलब स्कूल कितने मतलब टाइम लगेगी? वो टाइम टेबल फ्लोट होगा ना आपके बीच में? मैम अभी तक तो नहीं हुआ. हो जाएगा बेटा, टाइम टेबल पता चल जाएगा. सेम टाइम टेबल है या फिर कैसा है वो आपको पता देंगे. ठीक है, मैम सेम तो बोले हैं अभी तक. बोले हैं क्या आप? मैम मैसेज बताओ आया ना है? यहाँ. यस मैम बोले तो. Confirm message आ गया? डे बोर्डर 1 तारीख से आएंगे. That I know. यस Day मैम boarder वो will तो come. I am not यस मैम हॉस्टल बस कल आएंगे ना. day boarder Monday से आएंगे. I know that, but what about the timetable and all? You got same timetable? Confirm message आपको मिल गया? मैम डोंट नो. That only I was asking. Okay. मैम हॉस्टलर कब आएंगे? Ma'am, it is given, ma'am. That It same is timetable 28 will को. follow. Okay, check your WhatsApp group. If it is given by principal ma'am, then it is authentic, or by VP ma'am, then it is also authentic. That means that is a confirm message. Okay, rest all here मैम and बस there we आएगी कि can't. नहीं? But that bus facility, I can't say anything about that, but school will decide. I can't tell anything about that. I can't make any comment about that. Okay, so you have to contact the school administration, then only they can tell. I can't tell about the bus facility and all. Okay, is it clear? From my side, I can't give you any Yes, information ma'am. like this. Okay, so if you want have any queries, make the contact to the school. Okay, so next it is okay, and if it is required, I तो will. उसमें मैम
transfer this question to VP ma'am or principal ma'am. I will tell you a query to them. Okay? Ma'am, Yes. ma'am, actually, a few days ago, call was came from the school, but when I'm calling them back, it's not. They're not picking the call. For what? Ma'am, don't know. A few days ago, school called me, but I couldn't pick the call. How I will get to know for what you received the call? Okay. But still, I will transfer this query about all this thing to madam, VP ma'am or principal ma'am, and they will handle. Okay? क्लियर है आपका जो डाउट है बस Yes, ma'am. फैसिलिटी वाला और कॉल कौन ने किया है ये सब आई विल ट्रांसफर दैट दे विल कॉन्टेक्ट ओके सो मैं वापस आ जाती हूँ रिवीजन पार्ट में तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 20 एलिमेंट आपको मैंने बोला था हाइड्रो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा एंड या आई गॉट समथिंग हियर मनन हैज गिवन मी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पूरा नहीं है बेटा पहला है हाइड्रोजन देन हीलियम देन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन ओके आपको एक एमएस वर्ड वाला फाइल दिख रहा है Yes, ma'am, दिख रहा है. या यू कैन सी इसमें ट्रिक भी लिखा है अगर आपको ऐसे याद होता है तो आप ऐसे याद कर लीजिए ओके दिख रहा है हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला Yes, ma'am. सोडा कोला और काजू कतरी ओके this way you can remember the what you can remember the elements in the sequence okay first 20 elements आपको याद करना ही पड़ेगा अभी तो मैं याद नहीं करवा सकती आपको खुद याद करना पड़ेगा so without wasting too much time because time is getting wasted I will just start the class okay so first write calculate not calculate yes यहीं से चालू करते हैं then I will write two differences between isotopes and isobar isotopes and isobar yes two differences between isotopes and isotope and isobar Bhumi yes Ma'am, isotope. wait Bhumi Yes, ma'am. two differences Ma'am, between yeah ma'am, isotopes are those whose atomic numbers are same and the atomic mass are different. And isobars are that whose atomic number is different and atomic mass is same. yes Ma'am, one more difference. yes Ma'am, I know only one difference. okay anybody else Harit Yes, ma'am. any other difference between isotope and isobar Yes, ma'am. yes Ma'am, it is related, but there is a difference that in isotopes, the base number is same, while in isobar, the number in power is same. ओके मैं आपको बता दूं आइसोटोप्स और आइसोबार्स का डिफरेंस क्या होता है ओके आप बहुत सारे डिफरेंस ले 4-5 लिख सकते हो ठीक है पहली बात तो ये क्या है आपने डेफिनेशन बोल दिया कि एटॉमिक नंबर आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है ठीक है इन आइसोटोप एटॉमिक नंबर इज सेम बट इन आइसोबार एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट ओके आइसोटोप मास नंबर इज सेम आइसोबार जो रहता है उसमें आइसोबार में मास नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा इन आइसोबार द मास नंबर इज यू कैन से have different at mass number in isobar okay next this जो आइसोबार रहते हैं उनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहती है जबकि आइसोटोप्स में दे एक्सिबिट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ओके आइसोबार वाले एलिमेंट का पोजीशन जो रहता है पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रहता है जबकि आइसोटोप एक ही जगह पे बिलोंग करते क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम है ना और जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं जबकि आइसोबार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग रहता है किसी को ये 5 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कि आप फिर से डिस्कस करना है इसको यस मैम प्लीज रिपीट पहला पॉइंट क्या है आपने एक बार सुन लो एटॉमिक नंबर किसमें सेम रहता है
Isotope. आइसोटोप। और ठीक है, और इसमें क्या किया, इसमें आइसोबार में एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, पहला डिफरेंस बन गया। इन आइसोटोप एटॉमिक नंबर इज सेम, वेयरएज इन आइसोबार एटॉमिक नंबर इज नॉट सेम। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। आइसोटोप्स में मास जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। आइसोटोप में मास अलग अलग रहते हैं, लेकिन आइसोबार में मास सेम रहते हैं। दो डिफरेंस हो गए, क्लियर है? यस, क्लियर है, इतना हो गया। Yes, ma'am. दो डिफरेंस हो गया, दो डिफरेंस तो ऐसे ही बन गया। तीसरा डिफरेंस ये रहता है कि ये जो है, सिंस आइसोटोप्स का क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो यस, व्हाट हैपेंड, एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हुआ, और लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। किसका? आइसोटोप का। प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो आइसोबार होते हैं उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग रहता है, क्लियर है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम Yes, रहते ma'am. हैं, आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम रहते हैं, लेकिन आइसोबार में प्रोटॉन्स अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तीन डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस ये है कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट्स के एटम होते हैं ना। कार्बन का, जैसे कार्बन का आइसोटोप बोले तो सारे कार्बन के ही एटम है, बस मास अलग अलग है। ओके, वैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोलोगे तो एक ही एलिमेंट, कार्बन के ही एटम होंगे जिनका मास अलग अलग है। यानी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका मास अलग अलग होता है। तो अगर वो एक ही एलिमेंट के एटम है तो पीरियोडिक टेबल में जो जहां पे मिलता पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जगह भी उनकी एक ही जगह होगी। Isn't that they will be given a single position in the periodic table? Isn't that? Whereas the आइसोबार जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के एटम है, तो पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह भी क्या होगी? अलग अलग हो जाएगी। चार डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस ये है कि जो आइसोबार होते हैं, जो आइसोबार होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से अलग होती, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट है। आइसोबार होते हैं ना, वो उनकी प्रॉपर्टी पूरी अलग होगी क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट है। लेकिन आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलेगी क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम है। इज इट क्लियर? ऑल द 5 पॉइंट्स इज क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरीके से अब इस 5 पॉइंट्स में आप कोई भी 2 या 3 जितना है मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट, मेंशन द 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन मेडिसिनल फील्ड। वेरी इजी। यस, भव्या, mention 2 uses of isotopes in the medical field. Yes, Yes, ma'am. mention 2 uses of isotopes in the medical field. Yes, quickly beta. What is this? कोई बता सकता है? Ma'am, may I? Yes. Ma'am, isotope of cobalt is used in treatment of cancer, and iodine is used in treatment of goiter. Very good. Isotope of cobalt is used in the treatment of cancer, and isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Okay, very good. Next, give the drawbacks of Thomson's model. Thomson's model के drawback क्या थे? Bhumi, what are the drawbacks of Thomson's model? Drawbacks of Thomson's model. Ma'am, Thomson not tell about the nucleus in atoms. Sir, 5 into 2. And Okay, Thomson. Yes. Yes, somebody is giving me the answer. Okay. Okay, that means Thomson was not able to explain the
स्टेबिलिटी ऑफ एटम. थॉमसन का ड्रॉबैक ये था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दूसरा ड्रॉबैक ये था कि वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल रहा था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जब थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, उनके एक्सपेरिमेंट हुआ, उनके एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन मिला और उनका जब स्टेटमेंट का कंक्लूजन मांगा गया, रीजन मांगा गया थॉमसन से, तो वो दे नहीं पाया. Okay, so the two drawback was that he was not able to explain the stability of the atom. Second thing, he was second thing, he was not able to explain the observations of Rutherford structure of atom. Okay, Rutherford के experiment के observation को explain नहीं कर पाया कौन? Thomson. The two drawbacks are clear. Ma'am, can we write this? There was no experimental support. No experimental support means for what? In Thomson's model, there was no experimental support. Can we write this in drawback? नो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट. कैसे? वो तो एक्सपेरिमेंट ही तो है, लेकिन किसके लिए, कौन से थ्योरी के लिए, किसकी डिस्कवरी के लिए, किसका यार? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, Thomson, ma'am, Thomson model. दैट नो मैं तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल बोल सकता हूँ। सपोर्ट है. ये कहाँ से आ जाएगा बेटा? ऐसा कैसे आ जाएगा? वो तो खुद एक एक्सपेरिमेंट है. किया था क्या मैम एक्सपेरिमेंट? वो एक्सपेरिमेंट ही तो किया था. वो उसी एक्सपेरिमेंट का तो ड्रॉबैक लिखना है. ठीक है. मुझे लगा मैम ऐसे मैं ही बोल दिया एक्सपेरिमेंट कुछ भी. मॉडल था ना, बस ऐसे ही. बिना एक्सपेरिमेंट करे नॉर मॉडल कैसे बनता है बेटा? हम बना सकते हैं ना. बिना एक्सपेरिमेंट किए मॉडल नहीं बनाया वो. ओके, आप ये बोल थियोरेटिकल कुछ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं था, ये बोल सकते. एक्सपेरिमेंटल नहीं था. ठीक है. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब कौन है? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. आर्यन, ये नया बच्चा है, कौन है? आर्यन. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 4. जल्दी करो बेटा, अभी फॉर्मूला, यूनिट मास और फॉर्मूला प्रिपरेशन करना, वो सबसे हार्ड है. Yes, somebody is giving me the answer. Very good. Yes, Kushil, Bhumi, Tanmay correct है. Kavya correct, Harit correct. Ma'am, 2. Yes, correct, 2. Sanyam, Krishika also correct, 2. The number of neutron is 2. Next, question number 5. मैम मैं बताऊं? Yes. मैम व्हाट इज मॉम? वो गलत हो गया. Okay. So what it is? Number of electrons in an element is 8 and number of proton is also 8. Then what is the atomic number? And what is the atomic number? 16. Ma'am, 16. 8 atomic number. Yes. कौन बोला था 15? It is 8. जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है ना. भूल गए जल्दी. एटॉमिक नंबर मैम 8 and 2. Ma'am, चार्ज. charge Yes. is minus. चार्ज प्लस माइनस Charge होता है. चार्ज प्लस माइनस होता है. प्लस Ma'am, चार्ज. minus. Yes, very good. Okay. Anion. Anion. Okay. Anion. Yes, good. So it will be having -2. The atomic number is 8 and the charge is -2. Okay. Question number 7. Question number 7. Question number 7. Ma'am, X mass number is 12. Mass number is of X and Y. Please Ma'am, answer to the Ma'am, chat X now. का 12 Answer है. through the chat now because some people are not at all replying and they are sitting simply. Reply to the chat. I can see some people are very continuous in. Yes, Bhumi, correct है बेटा. Okay, Y का क्या होगा? What about others? Hiteshi? Yes, ma'am. Answer that question. Kavya, Harit, Khushil, Bhumi, your answer is correct, beta.
Divya also. Ma'am, 12 and 14. 12 and 14. Good. Next. Question number 8. Who discovered electron? मैम किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को? Answer to the chat. Who discovered electron, then proton, and then nucleus? Yes. Yes, correct है. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करेक्ट है. करेक्ट व्हाट? भूमि, कृषिका, मनन. Yes, correct है. What about the discovery of proton? Electron was discovered by Thomson. गोल्डस्टीन. ओके करेक्ट है. गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, नॉट जेम्स चैडविक. ओके गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस सॉरी प्रोटॉन को. ओके हरित योर आंसर इज नो. चैडविक ने न्यूक्लियस कहाँ डिस्कवर किया था बेटा? रथरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. ओके फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन and nucleus is was discovered by Rutherford. Okay clear है? इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और न्यूक्लियस को रथरफोर्ड ने डिस्कवर किया था. ठीक है क्लियर है मॉली? बी केयरफुल अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर यस ओके कोई बात नहीं. Question number 9 answer I want through the video. I want to see the solved part. Okay. I want to see how you have solved. Solve it. I don't want the final answer through the chat. I want the complete numerical through the video. I want the answer. Yes, quickly. Nobody is going to show me to the video the answer. Yes, Bhumi showing. मैम दिखा रहे. हाँ एक मिनट. Or it is 16 point. How it is? No, beta, no. Yes, somebody showing me through the chat. This is Tanmay, I think so. Ma'am, screen sharing is off. Tanmay is giving me the answer to the chat.
Yes, Tanmay, can you show it in the copy? Yes, Krishika is showing. Can you show me from the starting what you have done, Krishika? Yes. Nobody else wants to show? Then I have to do. Ma'am, now No. Average atomic mass is 16.2. Formula क्या था बेटा? Okay, let me tell you. कल मैंने बताया ना summation of percentage of isotope and mass. Okay, Tanmay, it's correct, beta. But you have. Can you show me to the chat? Harit, what happened? Yes, Bhumi, it's not okay, beta. Ma'am, have done starting, but can't complete answer. Can't see answer. May I show you? Show. मैम मास नंबर को ही प्लस करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना परसेंटेज से. हाँ. Yes, are you going to show me anyone, or I have to solve it? Otherwise, I will solve it. I will not waste time. Because I have to deal with the formula preparation also. When I will Ma'am, deal. can you see my video? No. मैम आप ही बता दीजिए, मैं नहीं कर रहा. एक सेकेंड दे बता रही बेटा. कहाँ गया है हरित? कहाँ है? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है. Yeah, wait. Some 16.2 upon 10. Ma'am, I wrote 162 upon 10. Okay, let me solve. I will do. Okay, I will solve it, beta. Wait. घंटे को टाइम भी हो गया. फॉर्मूला यूनिट मास और फॉर्मूला प्रिपरेशन अभी तक से नहीं हुआ. फॉर्मूला यूनिट मास इज वेरी डिफिकल्ट. तो आपको क्या बोला है? 16.2 इज द एवरेज एटॉमिक मास. तो मैंने आपको बताया था एवरेज मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ओके, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, किसके इक्वल रहता है? मास ऑफ द एलिमेंट. ओके, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू इट्स परसेंटेज. तो 18 का कितना परसेंट था? 18 का कितना परसेंटेज था? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप आपको निकालना है. ओके, तो अगर एक एलिमेंट का परसेंटेज मैं मान रही हूँ x परसेंटेज है ना, एक एलिमेंट का अगर मैं मानू परसेंटेज कितना है? x% है. ठीक है? यस, द स्क्रीन इज विजिबल ना? यस. ओके, तो Yes, अगर मैं बोलूँ इसका x परसेंटेज है, तो x परसेंटेज को मैं x/100 लिख सकती हूँ. ठीक है? प्लस दूसरा एलिमेंट का मास कितना था? 16. What is this? 16. 18. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट का मास जो था वो क्या था? 18 है. एक का 18 है, दूसरे का कितना है? 16 है. सॉरी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, रेक्टिफाइंग मी. ओके, दूसरे का क्या है? 16. तो 16 का परसेंटेज क्या? अगर 100 में से x जो है, अगर 100 में से x जो है वो क्या है? x परसेंटेज किसका? इसका है. तो बाकी जो बचा हुआ 100 माइनस x परसेंटेज है वो किसका? दूसरा आइसोटोप्स का हो जाएगा, है कि नहीं? अगर x में से 100 में से x परसेंटेज अगर इस एटम इस पर्टिकुलर आइसोटोप का परसेंटेज है, तो 100 में से अगर मैं x माइनस करूंगी तो जो भी बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका होगा? जो भी बचा हुआ परसेंटेज जो बचा है वो किसका होगा? इसका होगा, है कि नहीं? तो 16 का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 माइनस x अपॉन 100. ठीक है? क्लियर है इतना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 16.2 इज इक्वल टू 18x अपॉन 100. 18x ले लेते हैं इसको, प्लस
1600 minus 16x. ओके, तो क्या हो जाएगा 16.2 is equal to 2x plus 1600. Okay, that means 2x will be equal to what? That means 2x will be equal to 1600. Okay, that means it will be equal to 1600. ये 100 को मैं यहाँ लेके शिफ्ट कर दिया, ये 100 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1620 हो जाएगा. इज इट क्लियर? ये 100 को, ये कॉमन 100 जो निकला है, इसको मैं कहाँ शिफ्ट कर दे रही हूँ? यहाँ शिफ्ट कर दे रही हूँ. तो यहाँ शिफ्ट करूँ तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16.2 से. तो 16.2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 1620. तो 2x क्या हो जाएगा? 1620 माइनस 1600. तो क्या बचेगा? 20. ओके, तो x क्या हो जाएगा आपका? 10%. ठीक है, तो जो ये आइसोटोप है, इसका मास इसका परसेंटेज है 10%, दूसरे वाले का 100 माइनस एक्स, दैट मीन्स 90%. समझ में आया क्या ये, कि फिर से समझाना है? आ गया मैम. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर परसेंटेज दिया है तो मास फाइंड करना है. याद रखना, ये ऐसा इसमें से मैं आपको मास मास देके परसेंटेज कैलकुलेट करने बोल सकते हो, या परसेंटेज देके मास भी कैलकुलेट करने बोल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट. मैम रेशियो में रहा तो कैसे करेंगे? रेशियो में कैसे, मतलब x:y का रेशियो दिया है. हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे मैम? x:y का रेशियो तो मतलब x कुछ तो दिया होगा. जैसे ऐसे मैम, क्लोरीन occurs in nature in two isotopic forms with masses 35U and 37U in the ratio of 3:1. रेशियो ऑफ 3:1. 3:1 ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, बोलो मैम, तो उसमें ऐसा लग सकते हैं 35 into 3/4 plus 37 into 1/4. कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं होगा. 3:1 मतलब कौन ज्यादा होगा ये बता रहा है, कौन किसके कंपैरिजन में 3 गुना है ये बता रहा है. ठीक है, यस मैम. और चलो अब आगे देखते हैं बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट. बिफोर स्टार्टिंग टू द बोर्स मॉडल, ओके, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट में थियोरेटिकल क्वेश्चन में बाद में जाऊंगी. पहले मैं फॉर्मूला, बिकॉज ये आज लास्ट ऑनलाइन क्लास है, कल मंडे से मेरे को कितने लोग मिलेंगे आई डोंट नो. ओके, तो पहले मैं ये मेन पार्ट खत्म कर लेती हूँ. ये these 4 are the main part for me first. Okay, calculate the formula unit mass. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? Calculate the formula unit mass of sodium sulfate. Yes, quickly. मास याद है? एटॉमिक मास. मैम भूल गया. Okay, one thing I am giving you, this question number 13, 14 and 15. Question number 13, 14 and 15. I want you people to do and send me the answer in the class WhatsApp group or PDF, how you want. I want you people to send. Okay? Ma'am, in the class WhatsApp group. That means not the principal ma'am वाला, आपका जो Ma'am, can you send in send in personal to you? Okay, no problem. Okay, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास. सोडियम सल्फेट का क्या मास क्या होता है? सोडियम सल्फेट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट? यस साक्षी, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट? Yes, no answer. Yes, who is going to reply me? Harit, Harit, tell me. Ma'am, first you will write the sodium and sulfate side, and then we'll write the valencies of both in. कितना वैलेंस चार्ज? सोडियम का चार्ज क्या है? कल याद करवाई थी ना, सोडियम का चार्ज क्या है? मैम भूल गया. मैम Na+. सल्फेट का कितना है? 2-. Very good. Bhumi and Kavya were giving me reply. Okay, so the formula will be Na2SO4.
Na2SO4। मैं पहले से बोल रही हूँ, इधर मास कैलकुलेशन आपको उसके लिए मास नहीं दिया जाएगा, एटॉमिक मास नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, सो अगर मैं इसका मास कैलकुलेशन करूँ, सोडियम का मास कितना होता है, एक एटम का मास 23 और टोटल आइटम कितने सोडियम के 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 23 प्लस सल्फर के कितने आइटम है, एक, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। So if you calculate overall how much it will be 40, Ma'am, 286. 46 plus 32 plus 64. How much? Ma'am, ma'am, 286 you. 286 कहाँ से होगा? नहीं, it will be not 286. Ma'am, 142. 142. 142. So it will be 142. Okay. 142. Okay, clear है? So answer will be 142. Next क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. Okay, so next is calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे करेंगे? Who will make the formula of yes? Who will make the formula of calcium carbonate? काव्या, calcium carbonate. Yes, ma'am. How will you make the calcium carbonate formula? Ma'am, CaCO3. Yes, correct. Very good. कितने आइटम है कैल्शियम के? मैम कैल्शियम के तो एक ही है ना? यस मैम। कैल्शियम का एक आइटम का मास होता है 40 प्लस कार्बन के कितने आइटम है? कार्बन के कितने आइटम है? मैम कार्बन के मैम एक ही आइटम, मास है 12 प्लस कितने आइटम है ऑक्सीजन के? 3 मैम ऑक्सीजन के 3 और एटम में मास कितना है 16। So if we are talking then it is 40 plus 12 plus 48. So it will be total how much? 100. मैम 100 यूनिट। So 100 unit is the mass of the calcium carbonate. Clear है? So this way it will be the mass. Yes, तो atomic mass वगैरह आप बहुत अच्छी से करोगे. Now what is the valency? ये आपको फॉर्मूला बनाना इन वे आपको मैंने प्रैक्टिस करा ही दिया. अब व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस? वैलेंसी निकालना मैंने आपको सिखाया है ना, कैसे कैलकुलेट करते